بھی میں ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جس نے ٹیچر کو ستایا اس نے رکشہ ہی چلایا، تو آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. بن چکے ہیں فادر ڈے، مدر ڈے، ٹیچر ڈے. میں کہتا ہوں ہمارے لیے ہر دن وہ فادر ڈے ہے جس دن آپ نے اپنے باپ کی عزت کی، ہر دن وہ آپ کے لیے مدر ڈے ہے جس دن آپ نے اپنی ماں کی عزت کی، اور اسی طرح ہر دن ہمارے لیے وہ ٹیچر ڈے ہے جس دن ہم نے اپنے ٹیچر کی عزت کی. چینج جو ہے وہ کسی پولیٹیکل انسٹیٹیوشن سے نہیں آئے گا. چینج آپ کی کلاس روم سے آتا ہے، اور چینج ایجنٹس جو ہیں وہ آپ کے ٹیچرز ہیں. اور انہوں نے کہا تھا ایک استاد اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اہل ہے، استاد ہونے کا اہل ہے، اور اس میں وہ اخلاص بھی رکھتا ہے تو وہ ولی اللہ ہے. استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن استاد بادشاہ بنا دیتا ہے. السلام علیکم ناظرین، ہمارا پاکستان کے ساتھ میں ہوں باسط ملک. آج استاد کے اس عالمی دن پر میں اس کائنات کے سب سے بڑے استاد جو پوری انسانیت کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خراج تحسین پیش کروں گا، ان کو سلام پیش کروں گا کہ وہ پوری انسانیت کے لیے استاد بنا کر بھیجے گئے اور انہوں نے بتایا کہ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے. اس کے بعد دنیا میں جو استاد ہوتے ہیں، جیسے ایک بلڈنگ کو بنانے کے لیے کسی معمار کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے انسان کو بنانے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. کسی بھی شعبے میں جائیں، کسی بھی جگہ جائیں، وہاں ہر شعبے میں انسان کو بنانے کے لیے استاد کا بہت بڑا کردار رہا ہے. آج میں نمل یونیورسٹی اسلام آباد میں موجود ہوں. یہاں اساتذہ سے آج کچھ بات کریں گے اس عالمی دن پر کہ اساتذہ کیا اپنے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں، وہ کس طرح سے طالب علم، ان کے بنائے ہوئے طالب علم کس کس پوزیشنز پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کیسا فیل ہوتا ہے، ان کا کیا اظہار خیال ہے. اور طلبہ و طالبات سے بھی آپ کی کچھ بات کرائیں گے کہ ان کا اس استاد کے دن پر کیسے جذبات ہے اور ان کا کیا اظہار خیال ہے. وہ انشاءاللہ ان کا جو اظہار خیال ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے، اور اساتذہ سے بھی آپ کی کچھ بات کرائیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ ایک اور استاد محترم موجود ہیں. سر جی بتائیے گا کہ آج اس عظیم دن پر سب سے پہلے تو ہم آپ کو خراج تحسین پیش کریں گے، ہم آپ کو سلام پیش کریں گے کہ استادوں کی بدولت ہی ایک ناکارہ سے ناکارہ انسان بھی جو ہے وہ بہت بڑا مقام پاتا ہے. ایک عظیم انسان کو بھی پہنچانے میں جو بیسک کردار ہوتا ہے وہ استاد کا ہوتا ہے. کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، کسی بھی شعبے میں چلے جائیں. تو آج اس عظیم دن پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کی نیک خواہشات کا بہت بہت شکریہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد کا جو مقام ہے وہ ظاہر ہے، وہ ہمارے دین کے اندر بڑا واضح ہے کہ ہمارے آخری زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک استاد کی حیثیت سے ایک معلم بنا کے بھیجا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمارے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب ہمارے کاندھوں کے اوپر کئی 100 اسٹوڈنٹس کی ذمہ داریاں بیک وقت ہوتی ہیں، چاہے وہ پڑھانے کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ ان کی جابس کے حوالے سے ہو، چاہے پھر ان کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے چیزیں ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد کا جو کردار ہے سوسائٹی کے اندر وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. سوسائٹی میں ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے استاد کا کسی انسان کو بنانے میں. تو آپ خود کے اوپر کیسا فیل کرتے ہیں ایز اے ٹیچر؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ٹیچر کا تعلق ہے تو اس کو فخر محسوس کرنا چاہیے. اس کو اپنے منصب پہ، اپنی خدمت پہ، اپنی ذات پہ، اپنے کام پہ فخر محسوس کرنا چاہیے. اس کے لیے 2-3 میں سمجھتا ہوں کہ شرطیں ہیں. اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے، مجھے وہ واصف علی واصف کا وہ قول کبھی بھی نہیں بھولے گا. انہوں نے کہا تھا ایک استاد اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اہل ہے، استاد ہونے کا اہل ہے، اور اس میں وہ اخلاص بھی رکھتا ہے تو وہ ولی اللہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک استاد اگر اخلاص کے ساتھ معاشرے کی خدمت کر رہا ہے، قوم کی خدمت کر رہا ہے، وہ نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت کا فریضہ اگر اچھے طریقے سے خلوص کے ساتھ للہیت کے ساتھ سر انجام دے رہا ہے، تو مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ وہ ایک اعلیٰ پائے کا استاد ہے اور وہ ولی اللہ کہلانے کے قابل ہے. اکثر اس چیز کے اوپر بھی بات کرتا ہوں کہ چینج جو ہے وہ کسی پولیٹیکل انسٹیٹیوشن سے نہیں آئے گا. چینج آپ کی کلاس روم سے آتا ہے، اور چینج ایجنٹس جو ہیں وہ آپ کے ٹیچرز ہیں. اور خاص طور پہ یونیورسٹیز کے اندر جو ٹیچرز ہیں، چونکہ آپ میچور اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ عمر کا ایک خاص حصہ جو ہے وہ گزار چکے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا کردار بڑا اہم ہو سکتا ہے کہ ملک میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے. بس بھائی دیکھیں، ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہے. جو میری رائے ہے، میں کہتا ہوں کہ جس طرح اب ڈے بن چکے ہیں فادر ڈے، مدر ڈے، ٹیچر ڈے، میں کہتا ہوں ہمارے لیے ہر دن وہ فادر ڈے ہے جس دن آپ نے اپنے باپ کی عزت کی، ہر دن وہ آپ کے لیے مدر ڈے ہے جس دن آپ نے اپنی ماں کی عزت کی، اور اسی طرح ہر دن ہمارے لیے وہ ٹیچر ڈے ہے جس دن ہم نے اپنے ٹیچر کی عزت کی. ٹیچر سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملا، ہم نے ٹیچر سے کچھ نہ کچھ پک کر لیا. کہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے جو ڈے بن چکے ہیں آج کل،
सोशल मीडिया के डे नहीं, इनको रियल में सेलिब्रेट भी करें और इनका एहतराम भी करें। अच्छा सर, एक उस्ताद के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक उस्ताद कैसे मिसाली बन सकता है, कैसे माशरे में एक मिसाल बन सकता है, किस तरह से वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे के वो किस तरह से मिसाली बन सकता है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो हमें रोज़ाना की बुनियाद पे देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और हमें फॉलो भी कर रहे होते हैं। और अगर देखें कि किस तरह से हम मिसाल बना सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स जो है अगर आपको फॉलो कर रहे हैं तो आप वो सारे के सारे काम करें जो आप उनमें देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप क्लासरूम में कह रहे हैं कि आप वक्त पे आया करें, तो सबसे पहले उस्ताद को चाहिए कि वो वक्त पे क्लासरूम में जाएं। अगर वो आप उनसे ये मांग रहे हैं या आप कहते हैं कि वो पढ़ के आएँ, तो मेरे ख्याल से एक उस्ताद को भी जो है वो क्लासरूम के अंदर पढ़ के जाना चाहिए। उस्ताद के अंदर वो तमाम की तमाम खूबियाँ हों वो जो शायद अपने स्टूडेंट्स के अंदर समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त यहाँ पे, हमारा अभी डिपार्टमेंट है यहाँ पे 1100 से 1200 के लगभग स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक उस्ताद जब क्लासरूम में जाके खड़ा होता है तो उसमें 30 से 35 स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे होते हैं। वो 30 से 35 स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो 60 से 70 आंखें हैं जो एक उस्ताद के ऊपर लगी होती हैं। और मेरे ख्याल से उस्ताद अपने किरदार के ज़रिए, उस्ताद अपने अमल के ज़रिए स्टूडेंट्स के अंदर वो तमाम की तमाम चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकता है जिसकी इस माशरे को बेहद ज़रूरत है। होता है कि अगर एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, कोई बात नहीं, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, लेकिन आप अपने टीचर के लिए अच्छे तब होंगे जब आप उस टीचर को रिस्पेक्ट देंगे। वो टीचर सबसे पहले आपको रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। आप रिस्पेक्ट देंगे, इट्स मीन वो टीचर का सबसे बड़ा हक आप अदा करें। टीचर की रिस्पेक्ट करें और टीचर से रिस्पेक्ट लें। स्टूडेंट ज़्यादातर यूनिवर्सिटी लेवल पे देखने को मिलते हैं जब उनको लगता है कि शायद उनको बहुत आ गया और वो अपने टीचर से बहुत आगे निकल गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा जो है वो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट करेंगे तो आप आगे जाएंगे। तो अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अपने टीचर्स की, तो वो एक पंजाबी में हमारे यहाँ कहते हैं कि जिसने टीचर को सताया उसने रिक्शा ही चलाया, तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा। सो अपनी टीचर्स का एहतराम करें। जज़ाकल्लाह सर, इस मौके पर जो तलबा और तालबात हैं वो किस तरह से, हम जैसे सुनते आ रहे हैं कि बादब बानसीब बेदब बेनसीब, ज़ाहिर है जो उस्ताद की रिस्पेक्ट नहीं करता, इज़्ज़त नहीं करता, वो माशरे में जो है वो अपना जो है अपने आप को अजीम नहीं बना सकता, कामयाब नहीं हो सकता। ये बात जो है हकीकत है। तो आप क्या समझते हैं इस मौके पर, आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि तलबा और तालबात किस तरह से अपनी उस्ताद की कदर करके, उनको वैल्यू दे के, इज्जत दे के किस तरह से वो कामयाब हो सकते हैं? आपने बड़ी अच्छी बात की कि बादब बानसीब बेअदब अब बेनसीब। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो अदब है, आज हम जिस मकाम पे पहुँचे हैं, मैं इसका सारे का सारा क्रेडिट अपने उस्ताद कराम को देता हूँ। अगर उनकी शफ़क़त साथ ना होती, अगर उनकी रहनुमाई साथ ना होती, अगर वो मुझे बेहतर तरीके से क्लास में गाइड ना करते या अपना दस्ते शफ़क़त मेरे सर पे ना रखते, तो शायद आज भी मैं कहीं बाहर अपनी ज़िंदगी के साथ तगो-दो कर रहा होता। लेकिन जब ये हो चुका है, मुझे यहाँ पे पता चलता है कि उस्ताद का मुकाम इतना ज़्यादा है कि हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि जिसने तुम्हें एक लफ्ज़ भी सिखाया वो तुम्हारा उस्ताद है। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक टू वे लर्निंग का प्रोसेस होता है। ज़ाहिर है कि हमारे स्टूडेंट्स को हमारे ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उस तरह से तवज्जो नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता है वो एक सेमेस्टर का नहीं है, वो 4 सालों का नहीं है, वो ज़िंदगी भर का रिश्ता होता है। और जिस रिश्ते के अंदर अदब आदाब कायम रहेंगे, वो रिश्ता जो है वो कई साल बल्कि पूरी ज़िंदगी जो है वो आपके साथ चलेगा। हाँ, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती टाइम में से टाइम दिया और अपने ख़यालात का इजहार किया। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा ना कि टू बी ऑनेस्ट, आज टीचर्स ने हमें आके बताया कि यार आज टीचर्स डे है और आप लोगों ने विश तक नहीं किया, तो हमें बड़ी एम्बेरसमेंट फील हुई कि यार आज टीचर्स डे था और हमें एटलीस्ट विश करना चाहिए था। ज़ाती माँ बाप होते हैं ना, वो आपको पैदा करते हैं, जो बाकी आपकी परवरिश होती है ना, असल प्रैक्टिकल लाइफ की परवरिश, वो आपके रूहानी माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। तो एज ए स्टूडेंट हमारा क्या फ़र्ज़ है कि टीचर्स के साथ हम किस तरह से, कौन सा रवैया किस तरह से पेश आएँ? सिर्फ इज़्ज़त से देखने वाले स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगा, अपने असातिज़ा ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करो। जो अपने असातिज़ा की इज़्ज़त नहीं करता वो कभी कामयाब नहीं होता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया उसने मुझे अपना ग़ुलाम बनाया। तो आप अपने असातिज़ा के ग़ुलाम हो। जज़ाकल्लाह सर, आज इस मौके पर हम तमाम असातिज़ा को आपको खराज तहसीन पेश करेंगे कि आप ही की बदौलत हमारी सोसाइटी के जो बड़े बड़े लोग बनते हैं, हम जैसे नाकारा स्टूडेंट जो है वो बनते हैं, जो जिनको इज़्ज़त का मकाम मिलता है, ये तमाम असातिज़ा की वजह से इस मौके पर सर हम खराज तहसीन पेश करेंगे आपको। ये है ना कि हमारे मुल्क में क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो कि कोई भी अच्छा स्टेप ना लेने की वजह सबसे बड़ी बनते हैं। अब देखिए, जिस तरह आपने बोला कि एक जो कौम का ममार है,
उसे इज्जत प्रोटोकॉल एहतराम क्यों नहीं दिया जा रहा। अब मैं पिछले दिनों एक न्यूज़ पढ़ रहा था, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने डेली वेजेस पे उसातिज़ा को भर्ती किया। अब देखें जिनको प्रोटोकॉल देना है, ठीक है, उनको हम दिहाड़ी पे रख रहे हैं, ठीक है, और उसके अपोजिट साइड पे दूसरी चीज़ें देखें, जो 2% के लोग हैं जिनको पता भी नहीं है, इंटर भी पास नहीं है, ठीक है, वो पॉलिटिक्स में आके एमपीए बने हुए हैं, आगे पीछे उनके प्रोटोकॉल्स हैं, करोड़ों रुपए ठीक है, खा रहे हैं। करोड़ों रुपए खा रहे हैं अवाम के। तो मैं असल में इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ कि जो मुल्क के ममार हैं, सॉरी कौम के ममार हैं, जो उसातिज़ा, उन्हें स्टूडेंट्स को इज्जत देते हैं, उन्हें असल में स्टेट को इज्जत देनी चाहिए जिस तरह बाकी इदारों को देते हैं, ठीक है। अपने ममार को एक मुल्क ने इज्जत देनी है, तो उनके लिए पॉलिसियाँ इस तरह की बनाई जाएं कि उनका इज्जत और एहतराम बने। हाँ जी। तो नाजरीन ये आज का दिन था। मैं एक बार फिर हमारी जो हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मैं एक बार फिर से उनकी अकीदत में जो है सलाम पेश करूँगा, खराज तहसीन पेश करूँगा। उसके बाद हमारे तमाम असातिज़ा जो है हमें पढ़ाते हैं, जो मुल्क में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, उनको मैं अपनी तरफ से खराज तहसीन पेश करूँगा, सलाम पेश करूँगा। उसके बाद जिस तरह से ये मेरे साथियों ने कुछ बताया आपको कि जो एक उस्ताद होता है उसका बहुत बड़ा मकाम होता है, मेमार होता है वो, तो उसको स्टूडेंट्स को इज़्ज़त देते ही देते हैं, स्टूडेंट्स को भी देनी चाहिए। स्टेट्स को भी जो उस्ताद का जो एक मकाम है वो उसको देना चाहिए, ताकि वो उस्ताद जो है मज़ीद इनकरेज हो, मज़ीद वो कौम की बेहतरी तभी होगी जब एक उस्ताद को इज़्ज़त दी जाएगी और उस्ताद को वो मकाम दिया जाएगा, उस्ताद को वो इज़्ज़त दी जाएगी, वैल्यू दी जाएगी, तब जो है वो कौम एक बेहतरी की तरफ जाएगी। तो इसी के साथ अपने मेज़बान बासित मलिक को दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी है आपको तो इसको शेयर कीजिएगा, अपनी राय का नीचे इजहार ज़रूर कीजिएगा, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।